Well, it's a bizarre scenario, ladies and gentlemen. At a time when law and order used to be the fact that would be championing the cause of Uttar Pradesh, the biggest turnaround, one gets to understand that even sitting inside jail, the mafia bosses can still plan executions. In this case, a key witness in a case that would put Atiq Ahmed, the Don, who's behind bars, in the dock. The death or the shooting of Umesh Pal sent flutters because it happened in broad daylight in Prayagraj. The details that we've accessed here at News 18 are shocking. Not just the alleged proximity of some of these people with the likes of Akhilesh Yadav, where Akhilesh Yadav has turned around and said anybody can take photo with anybody, that does not mean I am close to him. This same person who's there in the picture as one of the accused has been seen with a BJP leader too. So that is also there. But the fact is that these people plotted this murder inside jail. They recceed, they identified the time and place where they realized this person will be vulnerable. And they did not have one or two people. They had more than a dozen shooters, assassins, executors who were there at the ready. Some doing the recce, some as backup, and some who were there to go and kill Umesh Pal. So in the CCTV footage, if you were to see, you can see a person getting out of the car, running towards the car from which Umesh Pal is stepping out. You can see the other angle, you would see them stepping out of the Creta, and then not just with a gun in their hand, another person actually has a little bit of a small crude bomb in his hand, and he throws that that too. So this entire mafia neta nexus, is this still rampant? That's the big question. That smoke that you are getting, ladies and gentlemen, is because the bomb has been thrown. Something's been thrown by somebody from the other angle. This is just the top angle that you're getting. There is also the other angle of the CCTV footage, which shows these people rushing out. And we'll try and play that out for you in just a bit. So, who are all the people involved? The first person involved is Atiq Ahmed. Atiq Ahmed is named in the police FIR, and the plot was hatched at his behest. By whom? Atiq's brother Ashraf. He is also named in the police FIR. The assailants met him in jail. Atiq's wife Shaista Parveen has been named in the police FIR. Sadaqat Khan. He hatched the plot. The plot was hatched at his hostel, and they all stayed there at this hostel, the Allahabad Central University hostel. Atiq's son Asad, one of the executors, caught on cam firing at Umesh. Then Nafis Ahmed is the assailant. He is the owner of the Creta car in which these assailants actually travelled. That was their getaway vehicle. Arbaz is another shooter who was killed in the encounter just yesterday. Guddu Muslim is another shooter who's currently absconding, and Mohammad Ghulam is another shooter who's currently absconding. This is all information as per the Uttar Pradesh police. Now the BJP is also coming out and claiming a Samajwadi Party link to the accused. This was an image tweeted by the BJP saying Samajwadi Party is a nursery of criminals, and the Samajwadi Party coming out and countering the BJP's allegation and tweeted out a picture where they said anyone can come up and get a photo clicked because he's seen with a BJP leader, a former BJP MLA. This is what Akhilesh Yadav had to say when quizzed about his links with one of the accused. जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हुई है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने समय समय पर सरकार को लताड़ा है, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या जंगल राज चल रहा है। सरकार डायलॉग से चल रही है, और जिस सरकार का परमानेंट डीजीपी ना हो, एक ही अधिकारी पर इंटेलिजेंस हो, एक ही अधिकारी पर सब कुछ हो, उसके बाद कैसे उम्मीद कर सकते हो कि प्रशासन सही खबर मुख्यमंत्री और सरकार तक पहुंचाएगा। देखिए, तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। Rakesh Tripathi of the BJP is with us. We also have Vivek Silas of the Samajwadi Party. Rakesh Tripathi, law and order तो control में है, तो ये दिन दहाड़ कैसे हो गया? That's the first question that comes to mind. उत्तर प्रदेश की जेलों में बैठ के प्लॉट हैच किए जा रहे हैं। पूरे प्रकरण में जिस अपराधी माफिया का नाम इस पूरे घटनाक्रम के पीछे लिया जा रहा है, अतीक अहमद,
कि अतीक अहमद कोई अचानक पनपा हुआ माफिया नहीं है। 79 में पहला मुकदमा दर्ज होता है जब देश में प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे और उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे। राजीव गांधी जी के सीधे हस्तक्षेप के कारण, संरक्षण के कारण अतीक अहमद का राजनीति में प्रवेश होता है और समाजवादी पार्टी विधायक और सांसद बनाती है, उसके परिजनों को सांसद बनाती है और फिर बहुजन समाज पार्टी आज उनको संरक्षण दे रही है। लंबे समय तक जो अतीक अहमद माफिया उत्तर प्रदेश की गलियों में खुलेआम जराइम की दुनिया को स्थापित करने का काम कर रहा था, योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद न केवल हमने उसको जेल की सलाखों के पीछे भेजा बल्कि उसको उत्तर प्रदेश की सीमा से बाहर भी किया। दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, इस घटना को की जिम्मेदारी सब पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को आश्वस्त कर रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में एक एक वांछित अपराधी जो है उसको उसकी मुकम्मल जगह तक पहुंचाएंगे। और पहला अपराधी अरबाज खान, जिसने पुलिस पर फायरिंग करने का दुस्साहस किया, जिस पूरे मामले में एक आरोपी था, उसको उत्तर प्रदेश की पुलिस ने चैन की नींद सुला दिया है। अब वो जाकर के अपने गुनाहों की सजा मुकम्मल तरीके से पा रहा है। एक एक अपराधी का निश्चित तौर पर यही हश्र होने वाला है। अगर कोई अपराधी चुनौती देगा कानून व्यवस्था को तो निश्चित तौर पर कानून बिल्कुल कठोरता से कार्रवाई करेगा। यह सरकार कोई अपराधियों को पालने वाली, उनको बढ़ाने वाली सरकार नहीं है, योगी आदित्यनाथ सरकार ने स्पष्ट किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से एनकाउंटर के तुरंत बाद टेसुए बहाना शुरू कर दिया, शफीकुर रहमान बर्क के सांसद निकल कर आते हैं और अरबाज खान के मानवाधिकारों की बात करने लगते हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार यह बयान दिए जाते हैं कि एनकाउंटर टारगेट किलिंग है, यानी अपराधी पर कार्रवाई होती है तो समाजवादी पार्टी को दर्द शुरू हो जाता है। और इसीलिए हम केवल तस्वीरों के आधार पर नहीं कह रहे हैं, अतीक अहमद तो खुलेआम अखिलेश यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा पुष्पित पल्लवित किया गया अपराधी है। उनके तमाम शूटर्स पर अभी तो वो जेल में है ना, सपा दफ्तरों में, अभी तो वो जेल में है, बुलडोजर चलता है, कार्रवाई अभी तो वो जेल में है, अभी तो वो जेल में है। एक की विटनेस की दिन दहाड़े हत्या होती है, उसके आसपास गार्ड थे, इनके यहाँ एक नहीं 13 शूटर थे। राकेश त्रिपाठी, आप इस पे राजनीति कर सकते हैं, समाजवादी पार्टी पर दोष मढ़ सकते हैं, लेकिन जो विटनेस है वो तो मर गया। उस विटनेस, वो गवाह तो मर गया और जेल के अंदर बैठ के इन्होंने प्लॉट हैच किया है। तो माफिया राज मिट्टी में मिला है कि नहीं मिला है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा क्योंकि सरकार आपकी है। लेकिन समाजवादी पार्टी कैसे तत्वों को संरक्षण दे रही है, ये एक प्रश्न बनता है, इसका जवाब विवेक सिलाज दीजिए। जी, yes, very good evening to you, Mr. Anand. In the beginning of the show, you said the first person involved is Atiq Ahmed. Okay, let me come down to Hindi. पहला आपने बोला कि अतीक अहमद जो है वो इसमें पहला जो शख्स है, लेकिन सवाल ये है कि अतीक अहमद इस समय कहां है? अतीक अहमद इस समय अहमदाबाद की जेल में है, जो कि गुजरात में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको लेकर आती क्यों नहीं है? सबसे पहली बात, मुख्तार अंसारी के टाइम पे तो उन्होंने बहुत शोर शराबा किया था कि वो पंजाब में है, उसको कांग्रेस की सरकार आने नहीं दे रही है, उसको संरक्षण दे रही है, उसको फूल फल रहा है वहां तो बहुत परेशान हुए थे। लेकिन यहां पर इतना बड़ा माफिया अगर अहमदाबाद की जेल में बंद है तो आखिर भारतीय जनता पार्टी से कौन सी सेटिंग है कि उसको नहीं लेकर आ रहे त्रिपाठी जी? और दूसरी बात मैं बोलूं, अतीक अहमद 2018 में समाजवादी पार्टी के खिलाफ फूलपुर से सांसदी का चुनाव लड़े थे, जबकि योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी और भारतीय जनता पार्टी के ही समर्थन से लड़े थे, जिसमें उनका बेटा और उनकी पत्नी प्रचार कर रही थी और वो करीब 60,000 वोट भी पाए। तीसरी बात, अतीक अहमद अपना दल के प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, जो इनका सहयोगी दल है। क्यों त्रिपाठी जी, रहे कि नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आप में अगर हिम्मत है तो अपना दल जो आपको केंद्र में भी समर्थन दे रही है, उत्तर प्रदेश में भी समर्थन दे रही है, आशीष पटेल को आपने कैबिनेट मंत्री बनाया हुआ है अपने दल से, उनके संबंध तोड़ दीजिए, वो तो उनके प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ये कौन सी बात है? और दूसरी बात, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग आनंद जी, प्रयागराज कम से अंदर पूर्वांचल, mafias are playing cricket openly and no one is bothered to even look at them. I'll tell you who. People like Brijesh Singh, Vineet Singh, Udayban Singh, Sonu Singh, Monu Singh, Ajay Singh Sipahi, Badshah Singh, Sangram Singh and many more, Dhananjay Singh, they're playing cricket and no one is bothered even to ask them. They are roaming, they are MLCs, MLAs, and the chairman of Jila Panchayat. There's no one to question them. No. If you have to walk against the mafia, because Yogi ji said, if you quite literally mean that the mafia are playing cricket and not brandishing guns on the streets, then I'd rather they play cricket than run brandishing guns. But if you're saying that they are running their karobar, they are running their entire racket and still openly enjoying freedom, yes, then Rakesh Tripathi, bounties on their head. They have bounties on their head. हाँ, अब राकेश जी जवाब दें।
वो कह रहे हैं वो तो 2018 में ही हमारे खिलाफ लड़ चुके हैं, अभी भी आप समाजवादी पार्टी पर क्यों ठीकरा फोड़ रहे हैं? आपके साथ थे, यानी अपना दल के साथ थे, फिर बीएसपी के साथ थे, अलग अलग पार्टीज में वो फिर शिरकत कर रहे हैं। माफिया चलिए ऐसा देख ले, फिर भी अगर माफिया है तो सब माफिया है, तो सब माफिया को खत्म कीजिए। गुड माफिया बैड माफिया तो नहीं हो सकता। नहीं, एक तो आनंद जी एक तो विवेक साइलस ने जितने नाम गिनाए हैं अपराधियों के कह करके कि ये अपराधी हैं, इनमें से एक भी अपराधी भारतीय जनता पार्टी के साथ एसोसिएट नहीं रहा है, ना किसी को हमने एमपी एमएलए बनाने का काम किया है। हाँ, इनमें से कुछ एमपी एमएलए सपा और बसपा के सहयोग से जरूर बनते रहे हैं। ये फैक्ट है। इस फैक्ट को गूगल पर चेक कर सकते हैं आपके देख रहे हैं दर्शक। मैं दूसरी बात करूंगा, एक मिनट रुकिए। सांसद इन्होंने बनाया, अब विधायक इन्होंने बनाया, और आज ये जिम्मेदारी से अपने आप को पीछे कर रहे हैं कि नहीं हमने नहीं बनाया। अपना दल ने अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया था तो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन की शर्त स्पष्ट तौर पर है कि हमारे साथ अपराधी नहीं रहेगा। अगर भारतीय समाज पार्टी ने अब्बास अंसारी को अपने साथ चुनाव लड़ाया तो भाजपा से गठबंधन से अलग होकर लड़ा है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप एक माफिया को चुनाव लड़ाते तो ही उसका एनकाउंटर करना या उसको ठिकाने लगाना जरूरी है, या उसको अरेस्ट करना जरूरी है? माफिया तो माफिया है, चुनाव लड़े ना लड़े, उसको पॉलिटिकल बैकिंग हो ना हो, उसको तो फिर आपको तो जो मिट्टी में मिलाने का जो वादा है वो तो करना पड़ेगा। फर्क क्या पड़ता है अगर किसी माफिया को कोई पॉलिटिकल पार्टी बैक कर रही है ना कर रही है? माफिया है ना। अब मैं थोड़ी कह रहा हूं कि बीजेपी ने इनको चुनाव लड़वाया है, बीजेपी का उनका संरक्षण है। विवेक सैलास वो भी नहीं कह रहे। विवेक सैलास कह रहे हैं कि ये सारे माफिया डॉन्स हैं, ये खुलेआम घूम रहे हैं, इनका आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने यही पूछा। नहीं, बिल्कुल गलत कहा इन्होंने। एक भी ऐसा अपराधी नहीं है कि जो अपराधी खुले हवा में सांस ले सकता है, जिसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होती है, जिसके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल है, जिसके खिलाफ भी कोर्ट से वारंट है। ऐसे सारे अपराधी जो अभ्यासता अपराधी हैं, जो सिंडिकेट चलाते थे, जो एक नेटवर्क चला करके अपराध करते रहे हैं, सारे अपराधी जेल की सलाखों के पीछे हैं। अगर कोई अपराधी जो जेल से जमानत, कोर्ट के द्वारा जमानत लेकर के आता है, तो भी सरकार ने प्रयास किए हैं कि उनकी जमानतें कैसे रद्द करा करके जो समाज के लिए खतरा है उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। लेकिन जो उन्होंने कृत्य किया, जो आरोप आप लगा रहे हैं, आज सरकार किसकी है? दूसरी बार ओवरवेलमिंग मैंडेट सत्ता किसको दी गई है? उनको दी गई है जिन्होंने वादा किया कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सबसे बड़ा पैग उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर वोट मिला है, लॉ एंड ऑर्डर का मिला है। और अगर फिर भी ये आरोप लग रहा है कि खुलेआम माफिया घूम रहे हैं और ये इस तरह की सीसीटीवी फुटेज अगर दिख रहे हैं, तो फिर आप क्या कहिएगा? आप दोनों का धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। शो में वील हैव टू मूव ऑन।